Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 7th chapter 10, The Forest Lake. This chapter is written by Edgar Rice. The writer, he is an American writer, and actually he wrote about the famous icons type of stories. Here in this chapter, you are going to read about a story of a Tarzan, a boy who was a 10 years old boy, and actually the interesting part is that the mother is that this chapter story is as similar as the Tarzan story that you already heard about somewhere. Tarzan की स्टोरी आप लोग सुने होंगे, जंगल में उसकी पूरी लाइफ स्पेंड होती है. लाइक द सेम वे दिस स्टोरी इज ऑल्सो, बट दिस द राइटर एडगर, first time little bit explain about the writer. Edgar Rice is born in 1875 and he left this world in 1950. He was an American writer and best known for creating the characters of the jungle's hero, like a Tarzan. And actually, the interesting part of this chapter is that it is adopted from the Tarzans of Apes books written by Edgar. And Tarzan is a series of 24 adventurous novels, and of which Tarzans of the Apes is the first book. From that series, a little part is just taken and made this chapter, The Forest Lake. So further, it is given the warm-up activity, and here in a warm-up activity, the writer wants to drag your minds towards the forest life and all. So what question is written here? Imagine that you live deep inside a forest in Africa. How will you live? Answer these questions. So here the writer is saying that you live deep inside a forest in Africa. आप अफ्रीका के घने जंगलों के बीच में हो, वहाँ पे आप कैसे सर्वाइव करोगे? So here are some questions that you have to clarify. What will you wear? That you have to think about. अगर आप अकेले किसी जंगल के बीच में फंस जाते हो, सो यहाँ पे what you wear most of the times, yes, after a time whatever the clothes you wear should be messy and shabby, so you have to wear mostly the big plants, leaves and all. What will you eat most? Yes, definitely you are depend upon the natural resources. Natural resources means the fruits and all. Naturally जो आपको मिलता है पेड़ों से, वही fruits आप खाओगे. What will you stay how will you stay clean? आप खुद को साफ कैसे रखोगे? With the help of a ponds and a lake near that a forest. उस forest में ponds और lake जो भी होगा उसकी मदद से, पानी की मदद से. What are the dangerous you might face? वहाँ पे क्या danger आपको होगा? Danger of that dangerous animals and a night time mostly, the fox, the tiger and all. So you should use a fire. पहले के ज़माने में लोग स्टोन्स को रब करके फायर निकालते थे, चिंगारी निकाल के आग लगाते थे, एंड मोस्टली दे यूज़ दिस थिंग्स इन आफ्टर दैट आफ्टरनून टाइम के बाद, इवनिंग टाइम में, बिकॉज रात के समय में मोस्टली फॉक्स एंड टाइगर्स दे आर ट्राइंग टू अटैक ऑन द ह्यूमन बींग्स दोज हू आर लिविंग इन दैट फॉरेस्ट एरिया. सो इस तरह के ट्रिक्स हम अपना सकते हैं. यू जस्ट डिस्कस दिस all points with your friend. It is very interesting also. So now I'm going to explain this chapter number 10 from a book English Junction, publication Orient Black, The Forest Lake. In this you're going to read about a character of a boy. Already I informed you, Tarzan, 10-year-olds, and the mother and the forest life. Okay, now so the first line of this chapter is when Tarzan was a 10-year-old, he was already an excellent climber. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? टार्जन जो लड़का था वो 10 साल का था, जिसके चारों तरफ जो स्टोरी है रिवॉल्व करेगी, घूमेगी. ही वॉज ऑलरेडी एन एक्सेलेंट क्लाइंबर. वो एक बहुत अच्छा क्लाइंबर था. क्लाइंबर मीन्स जो क्लाइंबिंग का काम करते हैं, चढ़ते हैं पेड़ों पे, कूदते हैं, इस तरह के क्लाइंबिंग का वर्क करते हैं. बहुत ही अच्छा क्लाइंबर था. ही कुड ऑल्सो do many things on the ground that his little brothers and sisters could not do. यहाँ पर अभी इस फर्स्ट पैराग्राफ में ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि ब्रदर और सिस्टर जो थे, दे आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, दे आर द एप्स.
सो दैट्स वाई जो टार्जन था वो ज़मीन ग्राउंड में मीन्स नीचे पेड़ों से हटकर ज़मीन एरिया पे भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर लेता था जो कि उसके भाई बहन नहीं कर पाते थे. इन फर्दर नेक्स्ट पैराग्राफ्स इट विल बी डिस्क्लोज दैट कि उसके जो ब्रदर सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन, और यहाँ पे ब्रदर सिस्टर ऑलमोस्ट लिखा हुआ है. सो ब्रदर सिस्टर थे वो उसके जैसा एक्सीलेंट वर्क नहीं कर पाते हैं. क्यों? इट्स नॉट मेंशन हियर बट फर्दर इन पैराग्राफ इट विल बी मेंशन. ही वॉज अ डिफरेंट फ्रॉम देम इन ए मैनी वेज. वो उनसे टार्जन से उसके भाई बहन बहुत तरीके से अलग थी. यस डेफिनेटली टार्जन एक ह्यूमन बीइंग था एंड द ब्रदर एंड सिस्टर्स आर द एप्स ओनली. दे ऑफन मार्वल्स एट हिज क्लेवरनेस बट इन स्ट्रेंथ एंड साइज ही वॉज नो मैच फॉर देम. यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी दिमाग कितना चलता है, उस दिमाग का अगर कंपैरिजन करते हैं, क्लेवरनेस का कंपैरिजन करते हैं उसमें, या फिर उनकी स्ट्रेंथ जो ताकत है, या फिर साइज़ में, वो देखने में साइज़, बॉडी का शेप साइज़ जो है, किसी भी तरह से वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं. इवन दे आर ब्रदर सिस्टर बट वो मैच नहीं करते हैं बिकॉज द टार्जन इज अ ह्यूमन बीइंग एंड दे आर द एप्स, द ब्रदर एंड सिस्टर. At 10 years, एप्स वॉज fully grown. अब 10 साल के जब ये एप्स हुए हैं, ये पूरी तरह से इनका शारीरिक जो फिजिकल ग्रोथ है वो हो चुका है. एंड सम ऑफ देम टॉवर्ड्स ओवर 6 feet इन हाइट. एंड उसमें से कुछ जो है उनकी हाइट तो 6 feet से भी ऊंची पहुंच चुकी है. वाइल लिटिल टार्जन वॉज स्टिल बट अ हाफ ग्रोन बॉय. लेकिन अभी जो टार्जन है वो 10 साल में एक छोटा बच्चा है, वो पूरा ग्रो नहीं हुआ है, पूरा नहीं बड़ा है. येट सच अ बॉय, वो क्या है, एक लड़का है बस. सो इन अ फर्दर पैराग्राफ व्हाट दे आर सेइंग फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि शुरुआती बचपन के शुरुआती दिनों में व्हाट हैपेंड, ही हैड यूज्ड हिज हैंड टू स्विंग फ्रॉम अ ब्रांच टू ब्रांच. वो अपने हाथों के सहारे से एक डाली से दूसरे डाली, ब्रांचेस टू ब्रांचेस मीन्स एक ब्रांच से एक डाली से दूसरी डाली कूदता रहता था. फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ हिज मदर मीन्स अब किसको फॉलो करता था? मदर काला. यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उसकी माँ का नाम काला था. वो अपनी जैसा उसकी माँ करती थी काला, क्योंकि वो एक एप्स थी, इसलिए एज ही ग्रू ओल्डर उसके जैसा कि उसकी माँ करती थी वैसा ही वो भी सीखता था और फॉलो करता था एज ही ग्रू ओल्डर. जबकि अब जो उसकी भी वो है, बूढ़ी हो गई है माँ, थोड़ा एज हो गया. ही स्पेंड आवर्स अपॉन आवर्स स्पेंडिंग थ्रू द ट्री स्टॉप्स विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर. अब का जो कि जबकि काफ़ी समय बीत चुका है, तो अब ये लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं? पेड़ों के ऊपर, जहाँ इनके भाई बहन जो एप्सेस है वहाँ पे जो रेस्ट करते हैं, वहाँ ऊपर पेड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं. तो ये लोग पेड़ के ऊपर बैठकर ही ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं. हिज लाइफ अमॉन्ग दीज फायरस एप्स हैड बीन हैप्पी. फायरस मीन्स यहाँ पर है खतरनाक. एप्स जो है इनके बीच में इसकी ज़िंदगी कैसी बीत रही थी? काफ़ी खुशहाली, वो काफ़ी खुश था, वो इनके साथ काफ़ी खुश था अपने भाई बहनों के साथ. he did not remember any other life, nor did he know that there was a big world filled with a strange and new things outside this little forest. In this paragraph they are mentioning कि उसको ये चीज़, टार्जन को इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था that apart from this lake or this forest जहाँ पर वो रह रहे थे, उनसे हट कर भी कोई दुनिया है जहाँ पर लोग, बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग, स्ट्रेंजर्स भरे हुए हैं, न्यू थिंग्स है. इस फॉरेस्ट से हटकर उसे इस सारी चीज़ों का बिल्कुल भी कोई अनुमान नहीं था टार्जन को. And what they are saying, he was nearly 10 before he started to realize that a great difference existed between himself and his brother and sisters. वो जो था टार्जन जो था, अभी जब वो 10 साल के करीब पहुंच रहा था, 10 साल की उम्र का हो रहा था, तब उसको एक चीज़ रियलाइज़ होने लगी, उसे एक चीज़ फील होने लगी कि उसके शारीरिक बनावट में, बुद्धि कैसा चल रहा है, काम करने के तरीक़ों में, हर चीज़ में उसे बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आने लगा खुद में और अपने भाई बहनों में. He did not resemble the great apes at all. Resembles means अपने को किसी दूसरे से कनेक्ट करके देखना, कंपेयर करना, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था. कंपेयर करने में उसे एक चीज़ का पता तो अच्छे से चल गया था कि जो एप्सेस है, उसके भाई और बहन जो एप्स हैं, उनसे ये बहुत अलग है, उनके जैसा बिल्कुल नहीं है. तो आफ्टरवर्ड व्हाट हैपेंड, ही ट्राई टू चेंज दिस बाय प्लास्टरिंग हिमसेल्फ.
फ्रॉम हेड टू फुट विथ अ मड। अब इस चीज़ को हटाने के लिए, चूंकि टार्जन एक 10 साल का बच्चा था, उसे उतना आइडिया नहीं है, उसे बस अपने भाई बहनों के जैसा सिमिलर दिखता था, क्योंकि वो हट कर दिखता था। तो उसने क्या एक तरकीब निकाली, प्लास्टरिंग हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को वो मट्टी से कवर करके, प्लास्टर मतलब कि अपने आप को वहाँ अपने शरीर पे मड को चिपका कर, मट्टी को चिपका कर वो सोचा कि अपने भाई बहन के जैसे शेप अपने बॉडी को दे देते हैं। बट दिस ड्राइड एंड फेल ऑफ, लेकिन वो सूखने के बाद वो मड जो है, मट्टी जो है वो गिर जाता है। Besides, it felt so uncomfortable that he quickly decided that he preferred the same of being so different to the discomforts of the drying mud. उसके बाद उसे बहुत जल्द ये चीज़ का एहसास होने लगता है कि जो उसने अब तक ये सारी मेहनत किया था, उतना टाइम उसने स्पेंड किया उस मड को अपने बॉडी पे चिपकाने के लिए, एंड आफ्टर ड्राइंग व्हाट हैपेंड, इट फेल्ड ऑफ, गिर गया मड। सो वॉट ही रियलाइज दैट वो सारी इसकी जो मेहनत थी वो तो वेस्ट हो गई। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग रियली बैड कि कुछ भी करके क्विकली डिसाइडेड दैट ही प्रीफर द सेम ऑफ बीइंग सो डिफरेंट। उसको ये एहसास होने लगा कि उसे अच्छा नहीं, सेम फील होने लगा कि वो मतलब अपने भाई बहनों के जैसा नहीं दिखता है। एंड इवन डिस्कम्फर्ट ऑफ द ड्राइंग मड, ड्राई जो मड लगाया था बॉडी से, उसके बाद उस ड्राइनेस जब मड गिरा तो स्किन कैसी ड्राई हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी उसे काफ़ी डिस्कम्फर्ट हुआ था वो मड लगाने के बाद। आफ्टरवर्ड व्हाट हैपेंड इन द हायर लैंड विच वॉज इज अ ट्राइब लाइक टू विजिट वॉज अ लिटिल लेक। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जहाँ पर ज़मीन थोड़ी ऊंची है, विच इज़ अ ट्राइब्स लाइक टू विजिट। ट्राइब्स का एक्चुअल मीनिंग होता है आदिवासी जनजाति, बट यहाँ पर ट्राइब्स से मतलब है फैमिली, टार्जन की फैमिली, इट मीन्स लाइक हिज फैमिली। यहाँ पर ट्राइब्स को फैमिली से रिजेंबल किया गया, फैमिली है यहाँ मतलब। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो ऊंचे जो नीचे सतह की ज़मीन है जंगल में, उससे जो ऊपर की जगह है, थोड़ा ऊपर चढ़ाई पे जाने में क्या है, वॉज अ लिटिल लेक, जहाँ पर मोस्टली उसके फैमिली के लोग जाते रहते हैं। इट वॉज ऑन अ sultry ड्राई डे ऑफ अ ड्राई सीजन। यहाँ पर मेंशन किया गया है sultry ड्राई डे मीन्स समटाइम्स वेदर काफ़ी ह्यूमिड रहता है, चपचपा नमी लिया हुआ, तो वहाँ पे का जो वेदर है वो इसी तरह था, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी, वेट, गीला गीला एक एटमॉस्फेयर रहता है। एंड अनकम्फर्टेबली वार्म एरिया जो रहता, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, फिर ज़्यादा गर्मी रहती, इस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ रहता है। दैट ही हैड गॉन डाउन टू द बैंक टू ड्रिंक। तो वहाँ जो लेक है, वहाँ पर एक लेक है, उससे थोड़ा नीचे उतर के जाना पड़ता है, गॉन डाउन टू बैंक टू ड्रिंक, वहाँ पानी पीने के लिए। आज ही लीन्ड ओवर, his little face was reflected in the still water of the lake। तो जब वो जाता है वहाँ पे उस लेक के पास ऊपर जाके, तो क्या देखता है कि लीन्ड ओवर मीन्स जब वो और करीब जाता है, झुक के देखता है उस लेक के पानी में, जो बिल्कुल स्टिल वाटर मीन्स बिल्कुल शांत है उस लेक का पानी। तो आप वाटर में जब बिल्कुल शांत वाटर है, बिल्कुल हिल नहीं रहा, उसमें आप अगर देखोगे तो आपको खुद का रिफ्लेक्शन दिखेगा। ये फर्स्ट टाइम रहता है जब टार्जन अपना फेस देखता है। इससे पहले ही डोंट नो अबाउट हिज फेस एंड हिज फेस फीचर्स, उसे नहीं पता था फीचर्स ऑफ लिटिल ह्यूमन बॉय। तब उसे ये एहसास होता है कि वो तो एक ह्यूमन बीइंग है। एंड नाउ ऑन दैट टाइम ही स्टार्टेड सीइंग हिज फेस फीचर्स मीन्स यहाँ पर आँख कैसा है, बड़ा है, छोटा है, नाक कैसा है, लंबा है, छोटा है, ओठ कैसा है, ये कैसी बनावट कैसी है फेस की, वो देखना चालू करता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, आपके बुक में भी है, सी वाटर बिल्कुल भी स्टिल है, रुका हुआ, उसमें जो है टार्जन जो बॉय है अपना फेस देख रहा है। फर्दर व्हाट हैपन, लेट मी स्क्रॉल देन आई विल एक्सप्लेन। टार्जन वॉज शॉक। द नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, टार्जन वॉज शॉक, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड, नाउ हियर इट इज डिस्क्लोजिंग कि फर्स्ट टाइम है कि वो अपना फेस देख रहा है, फर्स्ट टाइम ही हैड सीन हिज ओन फेस। ही बिगन स्टडिंग हिज फेस क्लोजली। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को देखते हो, किसी भी चीज़ को, किसी गिफ्ट को खोलते हो, तो उसे बहुत ध्यान से देखते हो। यहाँ तो टार्जन अपने फेस को, खुद को देख रहा है, तो बट नेचुरल है, वो उसे काफ़ी अच्छे से देखेगा। ही बिगन स्टडिंग हिज फेस क्लोजली। स्टडिंग मीन्स यहाँ पर अपनी फेस कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसे बहुत ही गौर से उसे देखने लगा। स्टडिंग मीन्स यहाँ पे देखने लगा। ही वॉज लुकिंग सो इंटेंटली दैट ही डिड नॉट हियर द पार्टिंग, of the tall grasses। यहाँ पे एक्चुअली
जब उसने अपने फेस के फीचर्स को देखना चालू किया टार्जन ने, सो ही वॉज लुकिंग सो इंटेंटली, मीन्स बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से, फुल अटेंशन के साथ देख रहा है, दैट ही डिड नॉट हियर द पार्टिंग ऑफ द टाल ग्रासेस बिहाइंड हिम। पार्टिंग ऑफ द टाल ग्रासेस मीन्स यहाँ पर उसके पीछे की जो ग्रासेस है उसको फाड़ कर पार्टिंग, उसे पार्ट करना मतलब उसे ऐसे हटाकर कोई पीछे से आ रहा है, उसे बिल्कुल भी उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान जो है अपने फेस के फीचर्स को देखने में है, टार्जन का लगा हुआ है। सो ही डिड नॉट हियर द पार्टिंग ऑफ द टाल ग्रासेस बिहाइंड हिम एज अ ग्रेट बॉडी पुश्ड इटसेल्फ थ्रू द जंगल, कि उसके पीछे से एक बहुत बड़ा, ग्रेट बॉडी मीन्स हियर द एंट्री ऑफ अ थर्ड कैरेक्टर साबर द ह्यूज लॉयनेस जो आ रही है पीछे से, उसके बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं है। हियर इट इज डिस्क्लोजिंग इन दिस पैराग्राफ, साबर द ह्यूज लॉयनेस स्टूड 30 पेस अवे। 30 पेस अवे मीन्स 30 स्टेप्स उससे पीछे है। लेजिंग हर ट्रेल, लेजिंग मीन्स अपना जो टेल है वो बिल्कुल साइलेंटली आ रही है। स्लोली शी मूव्ड अ ग्रेट पैडेड पाव फॉरवर्ड, pacing it noisily before she lifted the next, और स्लोली शी मूव्ड अ ग्रेट पैडेड पाव फॉरवर्ड। हियर आप लोग देखोगे जो जानवर, जो टाइगर होते हैं या डॉग्स का, तो मोस्टली पेट डॉग्स के घर पे आप देख सकते हो उनके नीचे का जो ये जो एरिया होता है, पंजे का एरिया, उसके नीचे हल्का बहुत पफ टाइप का जो होता है उनका पंजा होता है। तो यहाँ जो लॉयनेस है उनका जो पाँव के नीचे का जो पंजा होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ऐसे लगता है उसके नीचे कुछ पफ्ड स्पंज के जैसा होता है, इसलिए यहाँ पे ये पैडेड पाँव। तो उनको जब वो चलते हैं इसीलिए आवाज़ नहीं आता है, क्योंकि उनके नीचे एक स्पंज के जैसा पाँव रहता है उनका, और वो काफ़ी मोटा रहता है। दैट्स वाई यहाँ पे पैडेड पाव वर्ड यूज़ किया गया फॉरवर्ड, वो इसलिए धीरे धीरे आ रहा है और बिना किसी आवाज़ के आ रहा है, क्योंकि उसके पाँव में तो ऐसे स्पंज के जैसे लगा रहता है। प्लेसिंग इट नॉइसली बिफोर शी लिफ्टेड द नेक्स्ट, और बहुत ही साइलेंटली वो आगे बढ़ रही है साबर जो है। देन शी एडवांस्ड हर बेली लो ऑलमोस्ट टचिंग द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, अपना बैली नीचे करती है, जैसा कि आप मोस्टली कैट्स एंड जानवरों में देखो, जब वो किसी अपने शिकार पर अटैक करने के लिए जाती हैं तो वो नीचे की ओर जिस पोजीशन में झुकती हैं, और उसका जो ऑलमोस्ट टचिंग द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, बैली मीन्स उसका जो स्टमक है, जो पेट है, वो सरफेस को छू रहा है। मीन्स अ ग्रेट कैट प्रिपेयरिंग टू स्प्रिंग अपॉन इट्स प्रे, प्रे मीन्स शिकार, जैसे कि बिल्लियाँ जो हैं अपने शिकार करने से पहले जो पोजीशन लेती हैं वही पोजीशन इसने ले लिया है। इट मीन्स ये जो साबर है ये भी शिकार करने के पोजीशन में आ गई है, मूड में आ गई है। किसका शिकार? टार्जन का ना। नाउ शी वॉज विद इन 10 feet ऑफ द लिटिल फेलो, अब सिर्फ 10 कदम पीछे है। शी वॉज क्रॉचिंग सो लो नाउ दैट शी सीम्ड फ्लैटन टू द अर्थ। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो इतना साइलेंटली अपना काम कर रही है और ज़मीन में बिल्कुल फ्लैटन मीन्स ज़मीन में बिल्कुल नीचे सट के चल रही है। टेल ले क्वाइट एंड स्ट्रेट बिहाइंड हर, उसकी पीठ बिल्कुल सीधे उसके पीछे बस घसकती जा रही है, वो इतना स्लोली काम कर रही है। शी क्रॉस्ड हिज वे फॉर मूवमेंट एज दो टर्न्स टू स्टोन, then with an awful scream she sprang afterward when she crossed his way for a moment, अभी अपने रास्ते में थोड़ा सा रुकती है, and afterward आगे बढ़कर क्या करती है, awful scream she sprang, एक बहुत ही खतरनाक डरा देने वाली आवाज़ निकालती है, स्क्रीम चिल्लाती है, जिससे कि सामने जो भी है उसके सामने वो फ्रीज हो जाए, डर जाए। बट आगे क्या होता है, हर वाइल्ड स्क्रीम वॉज नॉट अ वार्निंग, इट वॉज टू मेक अ विक्टिम फ्रीज इन अ फियर। जो उसका चिल्लाना था, स्क्रीमिंग था, एक गरजने वाली जो आवाज़ थी, ये एक वार्निंग नहीं था, ये एक इंडिकेशन था विक्टिम के लिए जिसके ऊपर वो शिकार करने जा रही है, कि वो उस आवाज़ से ही डर के जगह फ्रीज हो जाए और अपनी हेल्प के लिए कुछ ना कर पाए। बट दिस डिड नॉट हैपन विद अ टार्जन, लेकिन ये ऐसा टार्जन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो मोस्ट फैमिलियर था जंगल में रहने का, इसलिए वो कुछ भी नहीं डरा। साबास स्क्रीम्ड पब्लिश्ड लिटिल टार्जन इनटू इमीडिएट एक्शंस, pushed, Sabas screamed,
पूज्ड लिटिल टार्जन, वो लिटिल जो छोटा 10 ईयर्स का जो टार्जन है उसको चिल्लाते हुए ढकेल देती है अचानक से, अपने इमीडिएट एक्शन से, मतलब अपने अचानक से उस पर अटैक कर देती है। बिफोर हिम लेइंग द डीप वाटर्स ऑफ द लिटिल लेक बिहाइंड हिम सर्टेन डेथ। तो उसके बिफोर हिम, उसके आगे जो था डीप वाटर था, लेक जो था, वो सोचता है कि अगर इसमें हम कूदेंगे तो मे बी मेरी मौत हो जाती है, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो यहाँ पे ये जो लॉयनेस है ये खा जाएगी। सो ही डोंट हैव एनी ऑप्शन, या तो करो या मरो वाला इसकी डू और डाई वाली सिचुएशन हो चुकी है अभी टार्जन की। ही हैड बीन टॉट बाय हिज वाइल्ड मदर टू अवॉइड द वाटर ऑफ लेक। इवन उसकी जो मदर थी, जो एप्स मदर थी काला, उसने भी उसे ये चेतावनी दी थी कि लेक के वाटर के पास मत जाना। बट ऑफ द 2 इवल्स ही फेस नाउ, लेकिन अब क्या करें, जो 2 इवल्स, जो इवल्स मीन्स मॉन्स्टर यू ऑल्सो कैन से, 2 इवल्स इसके सामने क्या है, या तो अगर या लेक में कूदने के लिए मम्मी मना करके रखी है, उसमें कूदेंगे तो भी उसको स्विमिंग नहीं आती है। His quickly mind chose the lesser one. Almost as soon as Sawa's screams had broken the silence of the jungle, Tarzan felt the cold water close above his head. यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि टार्जन जो है, आगे के पैराग्राफ में ये डिस्क्लोज होगा कि उसे स्विमिंग नहीं आती, तो उसके पास इन 2 एवल्स, अगर वो खड़ा रहा तो सावर उसे खा जाएगी, पानी में कूदा तो स्विमिंग नहीं आती है तो बिना स्विमिंग के वो डूब के लेक में मर जाएगा। लेकिन इन दोनों एवल्स के बीच में अगर से चूज़ करना तो सबसे कम खतरे वाली बात क्या है कि लेक में कूद जाते हैं। तो फाइनली टार्जन जो है लेक में कूद जाता है, और इवन ऑलमोस्ट एज सून एज सावर्स स्क्रीम हैड ब्रोकन, और इधर साबर जो थी, लॉयनेस जो थी, वो अलग चिल्लाई जा रही थी, उसके स्क्रीमिंग करने की वजह से जंगल इतना शांत था, उसमें खाली साबर्स की ही स्क्रीमिंग की आवाज़ आ रही थी। तो टार्जन जो है उस लेक के वाटर में कूद जाता है। अब उसका जो लेक का पानी है वो उसके हेड तक आ जाता है। ही कुड नॉट स्विम एंड द वाटर वॉज अ वेरी डीप, उसको स्विमिंग नहीं आता, लेक का पानी भी बहुत गहरा था। ही मूव्ड हिज हैंड एंड फील रैपिडली इन एन अटेम्प्ट टू स्क्रैम्बल्स अपवर्ड एंड ही फेल इनटू द स्ट्रोक दैट अ डॉग यूजेस व्हेन स्विमिंग। आप देखे होंगे डॉग्स को जब पानी फेंको तो वो अपना हाथ पाँव कैसे जल्दी जल्दी मारने लगते हैं, कभी वीडियो में कहीं भी देखा होगा। तो सेम ट्रिक वो अपनाता है, जैसे डॉग्स अपना हाथ पाँव मारते हैं अपने को बचाने के लिए, तो वो भी अपने को बचाने के लिए वो लेक के वाटर में अपना हाथ पाँव मारने लगता है। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड विद दिस न्यू स्किल्स। अब उसको यहाँ पे बहुत सरप्राइज है कि उसे तो स्विमिंग आता ही नहीं, लेकिन एनी हाउ हाथ पाँव मारने से कैसे भी वो लेक के ऊपर है, पानी में ऊपर है, नीचे नहीं गया है, तो उसे खुशी भी होती है, न्यू स्किल सीख लेता है। बट ही हैड नो टाइम फॉर थिंकिंग मच अबाउट इट, लेकिन उसके पास अभी ज़्यादा समय नहीं अपनी इस खुशी के बारे में ज़्यादा सोचने का, अपने इस न्यू स्किल्स के बारे में ज़्यादा सोचने का। फर्दर व्हाट हैपन हियर, ही वॉज, लेट मी स्क्रॉल, ओके, हियर ही वॉज नाउ स्विमिंग पैरेलल टू द बैंक एंड he could see Sabar there. वो he swimming parallel to the bank, वो किनारे किनारे उसी में था, रिवर लेक के किनारे किनारे ही स्विमिंग कर रहा था। The lioness was watching a Tarzan, जो lioness वहाँ से गई नहीं थी, जो साबर थी वो उसको वहीं पर देख रहे थे, एक्सपेक्टिंग मी टू रिटर्न टू शोर। वो क्या सोच रही थी, ये जब किनारे पर आएगा तब मैं इसको खा जाऊंगी। बट द बॉय हैड नो इंटेंशंस ऑफ डूइंग थिंग, लेकिन इस लड़के का, टार्जन का, कोई भी इरादा नहीं था बाहर आने का, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बाहर आया तो साबर ज़रूर उसे खा जाएगी। इंस्टेड ही रेज हिज वॉइस इन द कॉल ऑफ डिस्ट्रेस कॉमन टू हिज ट्राइब। इन लोग का, आदिवासी जनजाति में आप देखो, या फिर जानवरों की एक अलग भाषा होती है, तो वो उस आवाज़ में कॉल ऑफ डिस्ट्रेस में जब मदद के लिए किसी को बुलाते हैं, यहाँ पर साउंड मेड टू टेल समवन दैट यू आर इन अ ट्रबल, इस तरह का इनका एक होगा कोई साउंड, वो उस तरह वो वाली साउंड निकालता है जिससे उसकी मदर को और फैमिली मेम्बर्स को पता चले कि ये जो है ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अचानक से, बिल्कुल अचानक से, देयर केम एन आंसर फ्रॉम द डिस्टेंस, कहीं दूर से एक दूसरी आवाज़ आती है, एक आंसर आता है। प्रेजेंटली 40 और 50 ग्रेट एप्स स्वांग्स रैपिडली थ्रू द ट्री टुवर्ड द पूल, और अचानक से 40-50 एप्स का झुंड आ जाता है, किधर आता है, थ्रू द ट्री, ट्रीज मीन्स जंगल की ओर अंदर घुसता है जहाँ पर पूल है। इन
द लीड वॉज अ काला, और उसको लीड कौन कर रहा है, लीडर कौन है उसमें, उसकी माँ काला, हिज मदर, फॉर शी हैड रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ हर चाइल्ड, क्योंकि वो अपने बच्चे की आवाज़, टार्जन जिसको वो अपना बेटा मानती थी, अपने बच्चे की आवाज़ जो है वो पहचान जाती है और उसकी मदद के लिए आती है. दो मोर पावरफुल द एप सेज द लॉयनस डिड नॉट वांट टू मीट दिस इन लार्ज एडल्ट्स. तो लॉयनस को अब आइडिया हो गया कि वो इन सारे इतने ढेर सारे तादाद में एप्सिस से नहीं लड़ सकता है. विद स्नार्ट्स ऑफ अ हेट्रेड, एक हेट्रेड, एक मन में जैसे कि कुछ जाना पड़ेगा, इस तरह की फीलिंग लेते हुए शी स्प्रैंग क्विकली इनटू द ब्रुशेस एंड डिसअपियर्स. वो जल्दी से कहाँ भाग जाती है, झाड़ियों के अंदर घुस जाती है और वहाँ कहीं खो जाती है. जो साबर रहती है वो इतना ज़्यादा झुंड देखकर एप्सिस का वो भाग जाती है वहाँ से. So here this story is finished. ये थी story the lake forest lake chapter की. If you understand the explanation of my video, please like, subscribe, share and do comment in a comment box. If you need any extra notes or something else, if you want any updations, if you want in regarding notes, short questions and all, please mention in the chat box. I will really do it whenever I'll got that time. Okay, thank you for watching my video. Okay, bye.